Hello guys, welcome to CLAT Tips and Tricks by Aniket. Today we're going to learn some important articles which have been asked in CLAT, IELTS and other like entrance examinations and will be useful for the various examinations which are approaching this year. I'm sure I will help you, and some of my articles which are prepared from the compilation of important papers will surely benefit you and help you in preparations. Therefore, it's also video is good for all the law entrance examination students plus those other competitive examination students also who are studying for polity section and articles come in their paper. So let's begin. The first article which we are going to do is Article 136. Article 136, it relates to special leave petition. Which relates to special leave petition. It's one of the question in the CLAT examinations. Article 136 relates to the Article 136 relates to the special leave petition. And now friends, I think I should do some in synchronized way. Therefore, let's begin with the top dignitary post of the country. Like first we will begin from the President of India. The President of India articles, I think we should cover them at first so that it will help you while preparing in the examinations, and a synchronized way would be there. So President of the India, as we know, President of the India is the executive head of the country and he is the supreme commander of the armed forces of India. Who is the supreme commander of the forces? President of the country. He is elected by the electoral college consisting of elected members. Remember, it's very important. It is elected by the electoral member comprising of the elected members of Lok Sabha, Raj Sabha, MLAs, and also the members who are part of legislative assemblies of Puducherry and Delhi are also taking part in the election of president by single transferable vote. This is the important point to remember, my friends. Only elected members participate, not nominated members. In parliament, there are 14 nominated members, 12 at Lok Sabha and 2 at Lok Sabha, which are appointed by President. The 2 members nominated by President in Lok Sabha comes under Article 331. Which Article? 331. I repeat, 331 article says that President can appoint 2 Anglo-Indians in the Lok Sabha if their representation is inadequate. Similarly, as President appoints at central level, the Governor appoints 1 Anglo-Indian at state level in state legislative assembly. It comes under Article 333. It comes in Article 333. Now move to the President. The post President, it's been mentioned in Constitution under Article 52. There shall be a President of India. Next, move to next article, that is Article 53, which illustrates that President, who is the executive head of the country. President is the executive of country. किस article के अंदर आता है? It comes under Article 53. Article 54, which relates to the election of president. To whom it relates? It relates to the election of president. Article 54 relates to the election of president. Another very much important article is Article 61. I think you all would be knowing it. It's about impeachment of president. प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, ये इसका जो ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर प्रेसिडेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन का वायलेशन करता है तो उसको हम लोग इम्पीच या रिमूव कर सकते हैं. ये इम्पीचमेंट जो होती है ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हो सकती है. कई बार क्वेश्चन आता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किस हाउस में होता है. ऑप्शन होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ईदर ऑफ द हाउसेज नन. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाके लोकसभा राज्यसभा में कराते हैं कि आंसर होता है ईदर, किसी में भी हो सकती है. इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, पर इसका होने का जो प्रोसीजर है, आपको 14 डेज का एक प्रायर नोटिस देना होता है किसी एक हाउस में. जिसमें हाउस में प्रायर नोटिस दोगे उस हाउस में चार्जेस चालू होते हैं. इस बीच में प्रेसिडेंट आपको डिफेंड कर सकता है. जब ये चार्जेस एक हाउस में अप्रूव हो जाएंगे तो ये दूसरे हाउस में जाते हैं, जहां पे ये आपके 2/3 मेजोरिटी से अगर अप्रूव हो जाते हैं, दोनों हाउस में सहमति बनती है, तो प्रेसिडेंट को हम लोग इम्पीच कर सकते हैं. आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में एक बंदा ऐसा नहीं प्रेसिडेंट में था जो इम्पीच हुआ हो. तो आर्टिकल 61 रिलेट्स टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 57 डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट? आर्टिकल 57 जो आपका है, आर्टिकल 57 डिस्क्राइब्स अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 56 relates to the term of the president, which is of how many years? It's of 5 years, my friend. आर्टिकल 55 जो होता है, अब ये नया आर्टिकल है. आर्टिकल 55 की जगह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 54 जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कोरिलेट करता है. तो हमने पढ़ा आर्टिकल 52, 53, 54, 61. एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल 72.
आई थिंक यू वुड डूइंग पार्डन। पार्डन क्या होता है? इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो होता है पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, कम्यूट, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कर सकता है कैदियों के लिए। जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं उनके पार्डन कर सकते हैं, उनकी सज़ा माफ़ की जा सकती है, उनकी सज़ा कम करी जा सकती है, उनकी सज़ा को कैंसिल करके कोई दूसरी सज़ा दी जा सकती है। ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट के टर्म का जो आर्टिकल होता है वो उसके अंदर आता है 56 के अंदर आता है आपका आर्टिकल। री एलिजिबिलिटी का जो आर्टिकल है, एलिजिबिलिटी का आर्टिकल है, किसके अंदर आता है? 57 में आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आता है उसके बाद। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सबसे पहला चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन था? सीधी सी बात, जो पहला वाइस प्रेसिडेंट रहा होगा दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज द फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये किस आर्टिकल में आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल? कैन यू गेस? एनी ट्राइज? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया। हु विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट। Then we should move to the next article which relates to the article 74. It talks about there shall be a council of minister which will be headed by the prime minister to aid president, यानी पीएम आप कह सकते हैं। पीएम किस आर्टिकल में आता है? प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में आता है? तो उसकी होती है 74। प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में आता है? तो उसकी पोस्ट होती है कौन सी? 74। फिर आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में सुना होगा। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल इज द लीगल गार्जियन, लीगल एडवाइजर होता है। कौन होता है? लीगल एडवाइजर होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है? 76। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू शुड चेक आउट हु इज द अटॉर्नी जनरल एट प्रेजेंट। When you will check out, I'm not revealing the answers about these present thing because when you will check, you will look for it and if you don't know, it will enhance, you will be आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप जब वो देखेंगे तो आप इससे एक दो फैक्ट और देखेंगे कि सबसे पहला अटॉर्नी जनरल कौन था। हिंट दे रहा हूँ, पहला अटॉर्नी जनरल वो था जो पहले लॉ कमीशन का मेंबर था। इट्स नन अदर देन MC शीतल वार्ड। MC शीतल वार्ड पहले अटॉर्नी जनरल थे एंड प्रेजेंट में आप खुद ढूंढेंगे। इसलिए लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल 76 उसको कोरिलेट करता है, अटॉर्नी जनरल को करता है। ऐसे एक सिमिलर पोस्ट होती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 148। कैग आपका आता है आर्टिकल 148 में। इसको हम लोग कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? आपका कैग है। मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि अटॉर्नी जनरल जो होता है ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कैग इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब अंतर देखिए, अटॉर्नी जनरल का कोई रिसिग्नेशन या टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता। उसकी टर्म ऑफ ऑफिस में कोई ईयर कुछ स्पेसिफाई नहीं है। ही वर्क्स टिल ही वर्क्स ऑन द प्लीज ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी पे काम करता है। प्रेसिडेंट का जिस दिन मूड खराब हुआ अटॉर्नी जनरल को निकाल सकता है। पर कैग के लिए उसकी एक टेन्योर है उसका कि या तो 6 ईयर्स रूल करेगा, 6 ईयर्स काम करेगा, या जब तक उसकी एज 65 ईयर्स या रिटायरमेंट की एज तक ना पहुंच जाए। पर अटॉर्नी जनरल में ऐसा नहीं है, उसकी कोई एज नहीं है। जैसे हम गवर्नर के बारे में जानते हैं, गवर्नर भी वर्क्स एट दी प्लीज ऑफ प्रेसिडेंट। सिमिलर इज विद अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल इकलौता ऐसा बंदा है जो किसी भी केस की लीगल हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। इनफैक्ट ये पार्लियामेंट के भी किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, पर उसमें वोट नहीं कर पाएगा। पार्ट सब में ले सकता है बिकॉज ही इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये आपके थे अटॉर्नी जनरल। 76 आर्टिकल 148 में आपका कैग आता है। इस तरह हमने जो टॉप की पोस्ट है उनको कर लिया। तो अब हल्का जुडिशरी की पोस्ट पे आते हैं। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी कंट्री में कितने हाई कोर्ट्स हैं। अपनी कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स हैं। भले हम लोग के 29 स्टेट्स हैं, पर कुछ स्टेट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन कॉमन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद और तेलंगाना, इनके कॉमन है। और जो अंडमान निकोबार जैसे टेरिटरी से इनकी जुरिस्डिक्शन किसी दूसरे के अंदर आती है। अंडमान निकोबार की किस में आती है? कोलकाता के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है। आपकी लक्षद्वीप आइलैंड की जुरिस्डिक्शन केरला में आती है। पुडुचेरी की हाई किसके अंदर? ये दमन दीव दादरा नगर हवेली किसके अंदर आती है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आती है। गोवा का किसके अंदर आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है। इस तरह से जुरिस्डिक्शन कुछ की मिली है। 24 हाई कोर्ट्स अपनी कंट्री में। तो 124 आपका बताता है कि ये आपका 124 सुप्रीम कोर्ट इंडिया में होगा। उसके बाद आपके बाद 136 मैंने बताया जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है। स्पेशल लीव पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लैट में आ चुका है। स्पेशल लीव पिटीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये 136 में आती है। फिर आपके आते हैं आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है केस का। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जैसे इंटर स्टेट कोई सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का कोई केस है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा। स्टेट वर्सेस
स्टेट है, ये आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के साथ केस करना चाहती है तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, इसका आर्टिकल होता है 131। एपलेट जुडिक्शन जो होता है इसका आर्टिकल है आर्टिकल 132 से आर्टिकल 132-133। इसका कोई प्रिस्क्राइब नहीं है क्योंकि आर्टिकल 1 एपलेट जुडिक्शन जो है दोनों आर्टिकल्स के में कुछ कुछ पार्ट्स इसके मेंशन्ड है, इसलिए इसका आर्टिकल जो होता है 132-133 दोनों में इसके प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, इसलिए इसको का कम लेके चलते हैं। देन वी शुड एम्बार्क ऑन द मेजर पार्ट आर्टिकल 141, सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके सब पे बाइंडिंग होगा, सिंस सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द नेशन, उसका जो फैसला होगा इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। तो आर्टिकल 141 सेज दैट कि एससी का फैसला जो होगा बाइंडिंग होगा। फिर आता है आर्टिकल 143 जिसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसे किसी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी है, सो he can refer to president, it comes under advisory jurisdiction, article 143। हमने ये आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं, so you now think I think somewhat articles you would be familiar with very easily and the rest articles I am there to help you out with, so we are discussing other also। The article 79 of the constitution relates to what? Article 79 relates to the parliament। आर्टिकल 80 किसके लिए है? आर्टिकल 80 आपका राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपर हाउस में जो राज्यसभा है, क्या टर्म होता है राज्यसभा के मेंबर्स का? 6 साल होता है टर्म, जिसमें से जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं हो सकता, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होगा। परमानेंट हाउस ऑफ द बॉडी है। चेयरमैन अब मैं बता चुका हूँ कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है।